हरे कृष्ण। आज का मेरा टॉपिक है टॉलरेंस। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वी विल चैंट सम प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर 2 वर्स नंबर 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पायिनो नित्यस्तां तितिक्षस्व भारत। मात्रा sensuous, sparsh perception, tu only, Kaunteya, O son of Kunti, Sita winter, Ushna summer, Sukha happiness, Dukkhada giving pain, Agama appearing, Apayinaha disappearing, Anityaha non permanent, Tan all of them, Titikshasva just try to tolerate, Bharata, O descendant of Bharata dynasty. O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are all like appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, O son of Bharat, and one must learn to tolerate them without being disturbed. Purport by Srila Prabhupada. In the proper discharge of duty, one has to learn to tolerate non-permanent appearances and disappearances of happiness and distress. According to Vedic injunction, one has to take his bath early in the morning, even during the month of Magh, January and February. It is very cold at that time, but in spite of that, a man who abides by the religious principles does not hesitate to take his bath. Similarly, a woman does not hesitate to cook in the kitchen in the months of May and June, the hottest part of summer season. One has to execute his duty in spite of climatic inconveniences. Similarly, to fight is the religious principle of Kshatriyas, and although one has to fight with some friend or relative, one should not deviate from his prescribed duty. One has to follow the prescribed rules and regulations of religious principles in order to rise up to the platform of knowledge, because by knowledge and devotion only can one liberate himself from the clutches of Maya. The two different names of address given to Arjuna are also significant. To address him as Kaunteya signifies his great blood relations from his mother's side, and to address him as Bharata signifies his greatness from his father's side. From both sides, he is supposed to have a great heritage. Great heritage brings responsibility in the matter of proper discharge of duties. Therefore, he cannot avoid fighting. श्री कृष्ण अर्जुन को इससे पहले वाले वर्ष में बताते हैं कि आत्मा और जो शरीर है अलग अलग है, और आत्मा शरीर में रहती है, और आत्मा की प्रेजेंस के कारण ही जो कौमार अवस्था से यौवन अवस्था और यौवन अवस्था से जरा अवस्था में शरीर परिवर्तित होता रहता है। ऐसे ही मृत्यु के समय जो आत्मा है पुराने शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है, इसी को मृत्यु बोलते हैं। और जो धीर व्यक्ति होता है वो ऐसे जो चेंज ऑफ बॉडी से विचलित नहीं होता है। आगे श्री कृष्ण बोलते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो नित्यस्ताम तितिक्षस्व भारत। मतलब जो सुख दुख हैं वो सर्दी और गर्मी के समान हैं जो आते जाते रहेंगे, इसलिए हमें सदैव अपने कर्तव्य राह पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को कौन्तेय और भारत कहकर भी बुला रहे हैं। कौन्तेय और भारत इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि वो एक शूरवीर थे, और शूरवीर होने के नाते उनका जो बैकग्राउंड था वो शूरवीरों का था, इसलिए वो पीठ दिखाकर भागने वाले में से नहीं थे। ऐसी परिस्थिति में अगर वो युद्ध से विमुख होते हैं, तो युद्ध से विमुख अगर वो हो जाते हैं तो उनको शोभा नहीं देता है, क्योंकि वो क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय होने के नाते राइट कॉज के लिए युद्ध करना उनका कर्तव्य था। तो जो अर्जुन थे वो एक तरह से पहले तो उनको शायद प्रपंच करके जो कौरवों ने उनसे सारा राज्य छीना था, और फिर बाद में जब उन्होंने सुई के बराबर तक का उनको एक ज़मीन न देने से मना कर दिया, तब श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनके खिलाफ एक तरह से युद्ध का ऐलान किया था। तो युद्ध का ऐलान करने के बाद, युद्ध भूमि में आने के बाद और युद्ध शुरू होने से पहले ही अपने आप को युद्ध विमुख कर देना, भले ही कॉज कुछ भी हो, चाहे वो अच्छा कॉज हो, लेकिन दूसरों की दृष्टि में यही जाएगा कि ये भय के कारण या डर के कारण गया है।
इसलिए पीठ दिखाने का एक जो क्षत्रिय होता है उसको सवाल नहीं उठता, इसलिए वो पीठ दिखा के नहीं जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण बोल रहे हैं तुम भरत और कौन्तेय की जो भारतवर्ष से आए हो, इसलिए पीठ दिखा के तुम मत जाओ। तुम्हें युद्ध करना है, और युद्ध में करते समय मान लो थोड़ा सा जो एक तरह से डिस्कम्फर्ट होता है। क्यों? क्योंकि युद्ध किससे करना था? उनको रिलेटिव से युद्ध करना था, और उसमें भी भीष्म पितामह और द्रोण थे, और जिनके प्रति उसके हृदय के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। तो जैसे सुख और दुख होते हैं, ये सेंस ऑफ परसेप्शन के कारण है। जैसे यहाँ पे जो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई स्पिरिचुअलिस्ट होता है, वो सुबह पहले स्नान करता है ब्रह्म मुहूर्त में, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। कड़ी सर्दी के अंदर भी वो सुबह पहले उठेगा और स्नान करेगा। और ऐसे ही जो जैसे कोई गृहिणी होती है, वो रसोई के अंदर गृह कार्य कर रही है, चाहे ग्रीष्म ऋतु हो, कड़ी से कड़ी गर्मी क्यों ना हो, वहाँ पर भी वो एक तरह से गृह कार्य में लगी रहेगी, क्योंकि वो अपने कर्तव्य से अलग नहीं हो सकती। तो ये जो सेंस ऑफ परसेप्शन है, इनको टॉलरेट करना करता है अपने कर्तव्य की राह पर आगे बढ़ने के लिए। ऐसे ही अर्जुन को ये सेंस ऑफ परसेप्शन हो रहा था, मतलब उसको जैसे ही जो अहंकार पे जा रहा था, ये मेरा है, ये मैं शरीर हूँ, और इस शरीर से रिलेटेड ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे गुरु द्रोण हैं, तो यदि मैं इनके विपरीत लड़ता हूँ तो ये मेरे ही दुख का कारण है। तो इस दुख को श्री कृष्ण बोल रहे हैं ताम तितिक्षस्व, किस कारण से? राइट कॉज ऑफ फाइट के लिए। आप जो युद्ध कर रहे हो, वो कॉज अगर आपका राइट है, तो उस राइट कॉज पे युद्ध लड़ते हुए यदि आप मृत्यु को प्राप्त होते हो तो स्वर्ग लोक को जाओगे, और यदि आप जीत को प्राप्त होते हो तो राज का भोग करोगे। तो क्षत्रिय के लिए किसी भी हाल के अंदर युद्ध से विमुख होना एक तरह से शोभायमान नहीं था। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो पहले जो राजा महाराजा होते थे, वो सबसे पहले युद्ध में आगे रहते थे, और यदि वही विमुख हो जाएंगे तो पूरी जो सेना है वहाँ पे गलत मैसेज जाता है, और इस तरह से एक तरह से उनके अपयश भी फैलता है। इसलिए श्री कृष्ण अपने भक्त का कभी भी अपयश नहीं होना देना चाहते थे, इस कारण से उनको वो युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे थे। तो आज हम देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति दुखी है। दुखी क्यों है? जो श्री कृष्ण ने बोला है दुखालयम अशाश्वतम। कोई भी अपने आप, चाहे वो राजा हो चाहे वो चींटी हो, चींटी से लेकर राजा तक सब दुखी हैं। राजा भी छोड़ी, कोई देवता हो, इवन ब्रह्मा तक, कोई भी सुखी नहीं है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृतो अर्जुना। ब्रह्मलोक में भी यदि हम चले जाते हैं और ब्रह्मलोक हमको मिल जाता है, तो वहाँ पर भी जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो हमें पुनः इस धरती पर भेज दिया जाएगा। तो इस जो जन्म मृत्यु के चक्र में हम फंसे हुए हैं, हमें लगता है कि हमने बहुत मेहनत करी, हम बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लें, हमारे सब कुछ सुरक्षित रख लें, तो भगवान एंड टाइम पे किस रूप में आएंगे? मृत्यु सर्व हरश्च अहम। वो आपका सब कुछ हर लेंगे, सारी मेहनत हर लेंगे, सारी मेहनत का फल हर लेंगे। तो काल चक्र बहुत एक तरह से प्रभावशाली है, बहुत शक्तिशाली है। इसलिए हमें जो है एक तरह आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जब हम आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आगे बढ़ेंगे तो फिर राह के अंदर जो भी हमारे सुख और दुख आते हैं, हमें उन सुख और दुख को टॉलरेट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे जो अर्जुन को श्री कृष्ण बोल रहे हैं, भले ही तुम्हारी राह में ये थोड़ा सा दुख आ रहा है, लेकिन इसको तुम्हें टॉलरेट करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो आध्यात्मिक लोग जो होते हैं, उनका कर्तव्य होता है, दायित्व होता है कि वो स्वयं की भी आध्यात्मिक उन्नति करें और दूसरों की भी आध्यात्मिक उन्नति का प्रयास करें। कि दूसरों की आध्यात्मिक उन्नति किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती जब तक कि वो शुद्ध भक्त ना हो। यदि वो शुद्ध भक्त है, जैसे शिला प्रभुपाद हुए, तो वो दूसरे लोगों को भी शुद्ध भक्त बना सकते हैं। लेकिन हमें आदेश मिला है कि जारे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश, तो उस आदेश को मानते हुए अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करना चाहिए। अब सामने वाला भक्त बने चाहे ना बने, लेकिन हमारा जो प्रयास है श्री कृष्ण वही देखते हैं। तो इस परिस्थिति में, इस राह पर चलते हुए, भले ही हमें थोड़ा दुख मिले या सुख मिले, सुख में जैसा नहीं, सुख मिला तो हमने पाके अपने कर्तव्य से विमुख हो गए, और दुख मिला तो ऐसा नहीं इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गए कि हम अपने कर्तव्य से विमुख हो गए। हमें अपने कर्तव्य की राह पर सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो हम देखेंगे कि सुख और दुख जो सदैव सबके जीवन में रहते हैं। इस संसार के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे ब्रह्मा हो चाहे वो चींटी हो, कोई भी अपना जो है देह को एक तरह से बदलना नहीं चाहता, क्योंकि देह को बदलना एक तरह से अननेचुरल थिंग है। मृत्यु जो है एक तरह से अननेचुरल थिंग है। तो इसलिए जो आत्मा है इस जो देह परिवर्तन का एक तरह से विरोध करती है। लेकिन मृत्यु सर्वहरश्च हम जो काल चक्र है, जो श्री कृष्ण है, वो मृत्यु को प्राप्त करा ही देते हैं उसको। इसलिए कोई भी व्यक्ति मृत्यु नहीं चाहता, लेकिन कभी कभार डिस्ट्रेस जो होता है इतना ज़्यादा हावी हो जाता है किसी व्यक्ति के अंदर, हम देखते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड इसलिए करते हैं क्योंकि वो दुख को टॉलरेट नहीं कर पाते, और दुख इतना एक तरह से प्रभावशाली होकर आता है उनके जीवन के अंदर कि वो एक तरह से
सब कुछ इस तरह से सहन नहीं कर पाते और सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन सुसाइड हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। ये जो मनुष्य जीवन मिला है, 84 लाख योनियों बाद मिला है हमको, तो थोड़े से दुख हमारे जीवन के अंदर आ रहे हैं तो हमें उसको टॉलरेट करते हुए अपनी आध्यात्मिक प्रगति की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब ये दुख हैं, ये सदैव नहीं रहेंगे, ये आज हैं, कल हमारे जीवन में सुख आएगा, और सुख जब हमें मिले तो तब भी हमें यही सोचना चाहिए ये सदैव नहीं रहेगा। सुख आज आया तो ख़त्म भी होगा। इसलिए सुख में ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए और दुख में ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए, और अपने कर्तव्य राह पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन अपने आप को सुसाइड करना वास्तव में बहुत बड़ा पाप है। यदि आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट आ रहे हैं तो मतलब ये समझ लीजिए हमारे पाप कर्मों के फल हमें मिल रहे हैं। तो उसको अगर हम टॉलरेट करते चले जाएंगे, उसको हम सहन करते चले जाएंगे, तो हमारा जो मन है शुद्ध होता चला जाएगा, क्योंकि उसको हमने भोग लिया है। अब भोग लिया है तो फिर हमारे पास पुण्य के फल आएंगे, सुख के रूप में आएंगे। तो हमें ज़्यादा हमें खुश नहीं होना है। खुश होकर अगर हम कर्तव्य से विमुख हो गए तो वो सुख भी हमारे दुखों का कारण बन जाएंगे बाद में जाके। इसलिए हमें सुख और दुख को टॉलरेट करते हुए अपने कर्तव्य राह पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, और इतना ज़्यादा अपने आप को डिप्रेस नहीं करना चाहिए कि सुसाइड कर लें। यदि हमारे मन के अंदर कभी कभार बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूँ, कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब विपत्तियाँ आती हैं तो मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हो जाता है व्यक्ति कि वो सुसाइड करने के लिए एक तरह से फोर्सिबल हो जाता है। मेरे तो आसपास भी सुसाइड हो रखे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें, कि वो फोर्स कर दिया जाता है एक तरह से, समाज के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा फोर्स किया जाता है उसको सुसाइड करने के लिए। इसलिए कभी भी सुसाइड ना करें। सुसाइड करने से पहले ये ठान लीजिए कि आप जो हैं परमेश्वर के अंश हैं, और आप उस जगह को त्याग दीजिए। उस जगह को अगर आप त्याग देंगे तो आप सुसाइड अपने आप बच जाएंगे। और यदि हमसे वो जगह छोड़ी भी नहीं जा रही है और लग रहा है कि सुसाइड ही रास्ता है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें पायस एक्टिविटीज़ में अपने आप को एंगेज कर लेना चाहिए, एक तरह से अपने आप को व्यस्त कर देना चाहिए। क्योंकि हम जितना खाली बैठेंगे तो ये मन इतना प्रभावशाली है कि हमें बहुत गलत रास्ते पे लेके ही चले जाएगा। तो पायस एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं? यदि हम जैसे मान लीजिए कोई, आप अपने चिड़ियों के लिए परिंदा लगा सकते हैं जिसमें पानी हम रख सकते हैं, और उस पानी में से श्री कृष्ण को जैसे थोड़ा सा जल अर्पित करके, थोड़ा सा जल उसको टच करा के हम परिंदों के लिए रख सकते हैं, परिंदों पक्षियों के लिए रख सकते हैं परिंदे में। और ऐसे ही यदि हम थोड़ा सा दाने जो होते हैं, जो हमारे जैसे ज्वार होता है, उसमें हम श्री कृष्ण के चढ़ाया अर्पित कराया हुआ जल उसका टच करा के वो ज्वार कबूतरों में या चिड़ियाओं में हम डाल सकते हैं। और यदि हम जाते हैं, मनुष्य की सेवा हम कर सकते हैं, तो सबसे बढ़िया किसी गरीब के पास जाके आप उस भूखे गरीब को, और कुछ नहीं कर सकते तो एक दो वक्त का आप भोजन दे के देखिए अपने हाथों से। मैं ये नहीं बोला डोनेट भी करना चाहिए, अगर हमारे पास इतना समय नहीं है तो हम डोनेट कर दें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम अपने हाथों से किसी गरीब की मदद करते हैं इस प्रकार की, तो आप अपने आप खुद देखिए कि आपके अंदर का जो ईश्वर है वो आपसे सुखी होगा। और जब आपके अंदर का ईश्वर आपसे सुखी होगा तो आपके जो पाप कर्मों के फल जो आपको डिप्रेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो आप पर हावी नहीं होंगे। इसलिए अपने आप को कभी भी खाली मत रखिए। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कोई एक्टिविटीज़ ही नहीं है तो आप मेरे से आके कांटेक्ट करिए। मेरे पास इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए, इतनी सारी एक्टिविटीज़ है कि आपके पास 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। अभी जैसे मैं ये वीडियो बनाता हूँ, इस वीडियो को जैसे मैं खुद के लिए तो बहुत आसान है पढ़ाई करना, अब लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ दूसरों को समझाने के लिए। तो दूसरों को समझाने के लिए जब पढ़ा जाता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि आपको, जैसे मेरे को तो पूरा विश्वास है, मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली है, कौन सा श्लोक कहाँ पे है, वो सब चीज़ें पढ़ता हुआ मैं आ गया हूँ, और मुझे इन सब चीज़ों पूर्णतः विश्वास हो चुका है। इतना अडिग विश्वास है कि अब मेरे को इस विश्वास को कोई भी नहीं तोड़ सकता। लेकिन जब मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा तो मुझे वो सारी चीज़ें दोबारा से एक तरह से इकट्ठी करनी पड़ती है, उनको एक तरह से सर्च करना पड़ता है, और आपके लिए एक तरह से ये जो वीडियो है वो बनाने के लिए जो पूरा जो है एक तरह से पटकथा प्रिपेयर करनी पड़ती है, तो उसमें टाइम लगता है। इसके अलावा भी मेरे पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं कि मेरे को समय ही नहीं मिल पाता कि मैं उनके बारे में कभी सोचूं या आगे बढ़ सकूं, क्योंकि मैं इसी में इतना व्यस्त हो जाता हूँ, मुझे 24 घंटे भी कम लगते हैं। इसलिए अपने आप को व्यस्त रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी ऐसे एक्टिविटीज़ में व्यस्त रखेंगे तो आपके मन को समय ही नहीं मिलेगा फालतू की चीज़ें सोचने का। यदि आप अपने आप को व्यस्त नहीं रखते और खाली हो जाते हैं तो ये सबसे बड़ी, मैंने पहले भी बताया है, अव्यर्थ कालत्वम, अपना एक सेकंड भी आपका वेस्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक सेकंड की कीमत इस मनुष्य जीवन में बहुत ही अनमोल है। हर सेकंड आपका जो है परमेश्वर की राह की तरफ एक तरह से यूटिलाइज होना चाहिए। और यदि आपको फिर भी ऐसा लगता है ये सारी एक्टिविटीज़ कर ली, सब कुछ कर लिया है, फिर भी जो है मेरे को बिल्कुल भी शांति नहीं मिल रही है, तो फिर आप मेरे से एक बार संपर्क करिए।
मेरे पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर मैं उन प्रोजेक्ट्स में अगर आप हेल्प कराएंगे और उन प्रोजेक्ट्स को आप करेंगे भी, क्योंकि कर्म योग है, परमेश्वर के लिए बना रही है, इनमें से मेरा कोई भी एक तरह से सेल्फ इंटरेस्ट किसी के प्रति नहीं है। मैं तो हरे कृष्ण महामंत्र जप मिला है, अगर ये सारे प्रोजेक्ट्स नहीं भी होते हैं, परमेश्वर ने चाहा तो होने चाहिए, मैं तो चाहता यही हूँ, लेकिन नहीं भी होते तो मैं तो हरि नाम के जप लूँगा और पहुँच जाऊँगा वृंदावन और मैं अपना जीवन व्यतीत कर लूँगा। लेकिन यदि ये पूरे होते हैं प्रोजेक्ट, तो इससे मेरे को कोई लाभ नहीं होगा, इससे समाज को लाभ होगा, देश को लाभ होगा, विश्व को लाभ होगा। इसलिए अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपके पास सुसाइड करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो कृपा करके मुझसे संपर्क करिए और इस काम के बोझ से मुक्त होइए और कर्म योग में लगिए। इसलिए संसार को बोला गया दुखालयम अशाश्वतम। ये जो संसार है दुखों से भरा हुआ है, दुखों से इतना भरा हुआ है, और ऊपर से भरा हुआ तो है ही, ऊपर से ये क्या है कि अशाश्वत है, टेम्पररी है। लेकिन हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, एक परमानेंट मान लेते हैं, और यहाँ पे एक तरह से अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए सुख शांति बनाए करके एक तरह सेटअप करना चाहते हैं लाइफ को। तो जब परमेश्वर ने संसार की रचना ही ऐसी की है, तो ऐसे में यदि हम इस तरह का सेटअप करना चाहेंगे अपनी लाइफ को, खूब पैसा कमा लें फिर बुढ़ापे में आराम करेंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मृत्यु सर्वहरश्च चरम, आप कुछ भी कर लीजिए, अंत समय में मृत्यु सब कुछ खत्म कर देगी आपका। तो इस प्रकार के जो त्रिताप है उससे हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। आध्यात्मिक मतलब जो हमारा मन, हमारा शरीर हमको खुद देता है, कभी पीड़ा होती है, कभी दर्द होता है, कभी बुखार हो जाता है, कभी हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कभी बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये मन और ये शरीर जो हमें जो दर्द देता है, कष्ट देता है आत्मा को, वो कहलाता है आध्यात्मिक कष्ट। और आदि भौतिक होता है कोई दूसरा हमें देता है, कोई आ गया हमारा एक्सीडेंट कर गया, कोई हमारे को मार गया, कोई मच्छर हमें काट रहा है, कोई शेर हमें मार रहा है, तो ये कष्ट जो हमको मिल रहे हैं दूसरे शरीर वाले हमको दे रहे हैं, उसको बोलते हैं आदि भौतिक। और ये बोलते हैं आदि दैविक, जो कभी बाढ़ आ गई, कभी तूफान आ गया, कभी कोविड आ गया, तो ये सब आदि दैविक हैं। तो इन त्रिताप से ये सदैव शरीर जो है कष्टदायक रहेगा, हमेशा इस त्रिताप को सहता रहेगा। इसलिए इन त्रिताप से बचने का एक ही उपाय है, अपना जो निज स्वरूप है हम उसमें आ जाए। और निज स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम इस चीज़ को मान लें कि हम श्री कृष्ण के दास हैं, और उनकी सेवा के लिए यदि हम बने हैं, हम इस स्वरूपता को अपना लें, एक्सेप्ट कर लें और इसी के अनुसार अपना जीवन यापन करें, तो ये जो त्रिताप हैं हमें नहीं सताएंगे। लेकिन यदि हम इसके विरुद्ध और इसके अपोजिट होकर सारे कार्य करना जाएंगे, समय रहते, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो कुछ सालों बाद, ये सब चीज़ें नष्ट हो ही जाएंगी। इसलिए अपने आप को एक तरह से इन सब चीज़ों से हटाते हुए और मानव शरीर का बेस्ट यूटिलाइज करते हुए हमें अपने आप को श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। और श्री कृष्ण की सेवा में जब हम लग जाते हैं, तो ये सुख और दुख सदैव हमारे लिए टॉलरेबल हो जाते हैं, क्योंकि टॉलरेंट पावर ही हमें कौन देते हैं, श्री कृष्ण के चरणारविंद देते हैं। तो श्री कृष्ण के चरणारविंद ना हो तो रत्ती भर भी टॉलरेंस नहीं है, ना तो मेरे में है, ना तो समाज के किसी भी व्यक्ति में रहेगी। आप थोड़ा सा भी प्रोवोक करेंगे तो वो क्रोधित हो जाएंगे, और यदि किसी व्यक्ति को आप प्रोवोक कर रहे हो वो क्रोधित नहीं हुआ, तो यकीन मानिए उस व्यक्ति के पास श्री कृष्ण के चरणारविंद हैं और कुछ नहीं, उसकी ताकत ही श्री कृष्ण से आ रही है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, तृणादपि शुनि चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। मतलब अपने आप को तिनके से भी छोटा मानते हुए और अपने आप को एक तरह वृक्ष के समान सहिष्णु होते हुए और अपने आप के मान की ना कामना करते हुए, दूसरों का मान करते हुए सदैव श्री हरि कृष्ण का जप करिए। इसी परिस्थिति में हम जप कर सकते हैं। लेकिन ये जप करने की बोलना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल इसको कोई अप्लाई करता है तो एक तरह से हवाइयाँ छूट जाती हैं। बहुत मुश्किल टास्क है, ये आसान नहीं है। ये श्लोक बोला है चैतन्य महाप्रभु ने, तो आज के ज़माने में इसको अपनाना, अपने जीवन में उतारना, इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल, बहुत ही मुश्किल टास्क है। तो जो बोलते हैं ना कि जो श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुलुक होए, कोई वो शक्तिशाली जो वीर ही होते हैं जो भक्ति को चूज़ करते हैं, भक्ति की राह में आगे बढ़ते हैं। आप हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल लीजिए, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, वो अपनी हरि भक्ति में लगे हुए हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। लेकिन दुष्टों से भरा हुआ है समाज, नवाब साहब को पता नहीं क्या सूझी और वो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने वाले हरिदास ठाकुर तक को कष्ट दे दिए। तो हम तो क्या है, तुच्छ हैं और कलयुग के हैं और सांसारिक क्रियाकलापों में लगे हुए हैं, तो कष्ट तो हमारे जीवन में आने ही आने हैं। लेकिन इनके लिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ताम तितिक्षस्व भारता, इन सब कष्टों को टॉलरेट करते हुए आगे चले जाओ।
तो आज का लाइव गीता मैसेज यही है कि सबके जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, तो इन सुख दुख को श्री कृष्ण टॉलरेट करने के लिए बोल रहे हैं कि हमें जो है चाहे सुख आए तो ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए और कर्तव्य विमुख नहीं हो जाना चाहिए। ऐसे ही हमारे जीवन में यदि दुख आते हैं तो हमें डिप्रेस होकर कर्तव्य विमुख नहीं हो जाना चाहिए। हमें सदैव अपने कर्तव्य की राह पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए सुख आए चाहे दुख आए तो ताम तितिक्षस्व, उनको टॉलरेट करना चाहिए। और सुसाइड किसी भी हाल में ना करें। सुसाइड करने का मतलब है, सुसाइड में बोल रहा हूँ कि कई बार एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति को वो सोच नहीं पाता है, तो ऐसी परिस्थिति में हम एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं। एनवायरनमेंट चेंज करिए और अपने आप को पायस एक्टिविटीज़ में एंगेज करिए। आप देखिए कितने करोड़पति होते हैं, वो करोड़पति सुसाइड कर रहे हैं, मतलब उनके पास इतना पैसा है। यदि उन पैसों को वो सही यूटिलाइज करें, आप देखिए आप किसी गरीब को खाना खिला के देखिए, आपका परमेश्वर आपसे खुशी हो जाएगा। और जब परमेश्वर आपसे खुश होगा तो धीरे धीरे करके आपकी जब पायस एक्टिविटीज़ एक्यूमुलेट होंगी तो आप परमेश्वर के नज़दीक चलते चले जाएंगे। जो दूरी हमने परमेश्वर से बनाई है, उस दूरी को हमें कम करना है इस मनुष्य जीवन में, उस दूरी को बढ़ाना नहीं है। अगर हम उस दूरी को बढ़ा देते हैं तो ये मनुष्य जीवन विफल हो जाएगा। और उस दूरी को हम कम कैसे करें? उस दूरी को कम करने का यही तरीका है, एक तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते चलिए, और दूसरी जो अच्छी एक्टिविटीज़ में अपने आप को एक तरह से व्यस्त रखिए। खाली कभी ना बैठिए। अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी आपका खाली ना जाए। कोई किसी गरीब की मदद करिए, उसको कृष्ण प्रसादम दीजिए। यदि आपके पास वो भी नहीं कर पा रहे तो अपने छत पे चलिए, छत पे परिंदे लगा लीजिए, उसमें जल डालिए और जल में डाल के कृष्ण को थोड़ा सा जल अर्पित करिए अलग से, और उसमें थोड़ा सा जो जल है कृष्ण को अर्पित करो, जल उसमें डाल दीजिए, ताकि वो जो चिड़िया हैं या कोई भी पक्षी हैं वो उस जल को ग्रहण करेंगे तो उनकी आत्मा की भी शुद्धि होगी और आपको एक पायस एक्टिविटी का लाभ भी मिलेगा। और इस तरह हमने जो एक तरह से दूरी परमेश्वर से बना रखी है, वो दूरी धीरे 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 करके कम होती चली जाएंगी। इसलिए अपने आप को खाली ना रखते, हमें सदैव पायस एक्टिविटीज़ में एंगेज रखना चाहिए। और उस पायस एक्टिविटीज़ में भी नहीं तो हम सबसे बड़ी डिवोशनल एक्टिविटीज़ में जब करते हैं अपने आप को एक्टिविटी, भक्ति में जब एंगेज करते हैं, वो सबसे बड़ा एंगेजमेंट है। उससे बड़ा एंगेजमेंट कुछ भी नहीं है। इसलिए अव्यर्थ कालत्वम, इस मनुष्य जीवन का एक तरह से बेस्ट यूटिलाइज करना चाहिए। और इसके बाद इसमें जो बड़ी चाहे सुख आए और इसको यूटिलाइज करते हुए कर्तव्य राह पर आगे बढ़ते हुए, भक्ति की राह पर आगे बढ़ते हुए, या चाहे कभी सुख आते हैं कभी दुख आते हैं, उनमें हमें टॉलरेट करना चाहिए। इसी भाव को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो भजन है वो सूरदास जी का है, जिसमें वो श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, जैसे आप मुझे रखें वैसे मैं रहूंगा, क्योंकि उनको श्री कृष्ण की संरक्षण पे पूर्ण विश्वास है। ऐसे ही भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त का लक्षण ये होता है, वो श्री कृष्ण के संरक्षण पर पूर्ण विश्वास करता है। वो जो अनर्थ जो है उसके प्रति प्रयास नहीं करता। जो अपवर्ग है धर्मस्य ही अपवर्गस्य है, तो अत्यधिक प्रयास भी जो होता है वो हमारी भक्ति को एक तरह से क्षति पहुंचाता है। इसलिए यहाँ पे सूरदास जी बोल रहे हैं कि हे प्रभु, जैसे आप मुझे रखें वैसे मैं रहूंगा। तो चाहे सुख दो चाहे दुख दो, चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में मुझे रखो, मैं सदैव आपके जो मेरा कर्तव्य परम कर्तव्य है भक्ति मार्ग, उसमें सदैव आगे बढ़ता चला जाऊंगा। जो परमेश्वर को शरणागत होता है वास्तव में ही वो वास्तव में टॉलरेट हो सकता है, तितिक्षवा हो सकता है, और सदैव परमेश्वर के चरणारविंद को पकड़े रहता है। चाहे सर्दी आए, चाहे गर्मी आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, श्री कृष्ण के चरणारविंद को पकड़े रहना ही वास्तविक तितिक्षवा है। वास्तविक वही टॉलरेट हो सकता है।
और ऐसी परिस्थिति में ही टॉलरेंस हुआ जा सकता है। यदि हमने श्री कृष्ण के चरणारविंद नहीं पकड़े हैं तो तितिक्षुता रखना, टॉलरेंस रखना बहुत ही मुश्किल टास्क है, खासकर इस कलयुग के अंदर असंभव टास्क है। तो श्री कृष्ण से एक तरह शरणागति भाव को लेते हुए सूरदास जी यही कहते हैं कि हे प्रभु, आप जैसे रखे वैसे ही मैं रहूँगा, मुझे आपकी शरणागति में पूर्णतः विश्वास है। हो सकता है कभी मुझे भोजन प्राप्त हो चाहे नहीं हो, जब भोजन प्राप्त होगा तो आपका प्रसादम वाके पाऊंगा, और यदि भोजन प्राप्त नहीं होगा तो भूखा रह के भी आपके भजन में लगा रहूँगा। इसलिए मेरा जो प्रयास है वो जो भोजन प्राप्त करने में नहीं है, मेरा प्रयास है आपके चरणारविंद प्राप्त करने में। और हो सकता है कभी सुख आए कभी जीवन में दुख आए, चाहे सुख आए तब भी आपके चरणारविंद को पकड़ा रहूंगा, चाहे दुख आए तब भी आपके चरणारविंद को पकड़ा रहूंगा। परिणाम कुछ भी हो तो सदैव श्री कृष्ण की शरणागति को एक तरह से प्राप्त होते हुए ये जो भजन है इसी भाव को प्रस्तुत करता है। हरे कृष्ण। जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख तर कहाँ जो कहूँ, मुख तर कहाँ जो कहूँ, जैसे राखो तैसे रहूं। कबहु कभो जन देहो कृपा कर, कबहु कभो जन देहो कृपा कर, कबहु कभूक सहूं, कबहु कभूक सहूं, कबहु कतुरंगा छड़ू महागज, कबहु कतुरंगा छड़ू महागज, कबहु क भार वहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। कमल नयन घनश्याम मनोहर, कमल नयन घनश्याम मनोहर, अनुचर भयो रहूं, अनुचर भयो सूरदास प्रभु भक्त कृपा निधि, सूरदास प्रभु भक्त कृपा निधि, तुम्हारे चरण वहूं, तुम्हारे चरण वहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। सब जन के जानत हो सुख दुख, सब जन के मुख तर काजो कहूँ, हरे
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण।